Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine and safe at home. Okay, so today we are here to start our new chapter, that is chapter number 7 of science. So you can also open your discovering books along with me. First of all, we will discuss about new words. Okay, फर्स्ट इज मैटर. मैटर क्या होता है बेटा? एनी सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. Any substance that has mass and occupies space, that is matter. कोई भी सब्सटेंस बेटा जिसका मास मीन्स वेट, ठीक है, जिसका वेट होता है एंड वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज कॉल्ड मैटर. एनीथिंग लाइक चेयर, टेबल, बल्ब, फैन, है ना, इनका वेट भी होता है एंड दे ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस. सो दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर द मैटर. नाउ नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल. स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मैटर. कहते जो मैटर है बेटा दैट इज़ मेड अप फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर मॉलिक्यूल्स. छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है मैटर, जिनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स. ओके, नेक्स्ट इज पार्टिकल. पार्टिकल अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ समथिंग, वेरी वेरी स्मॉल पीस ऑफ समथिंग. नेक्स्ट इज order means smell. Rigid means fixed. Rigid means that is hard. When we touch it, that we feel it hard. Okay, firmly fixed. नेक्स्ट इज वॉल्यूम. द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज. वॉल्यूम होता है बेटा कि एक ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. नाउ नेक्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस क्या होता है? द स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन द molecules. The spaces present between the molecules, so these are called the intermolecular spaces. You can see these purple colors circles, these are the molecules, and spaces present between them, these are called the intermolecular spaces. Okay, now we are going to start with our chapter, that is first of all, what is matter beta? Matter, I already told you that any substance, anything that has weight and occupies space, that is called matter. ठीक है. Now let's start. लुक अराउंड यू, यू विल फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. है ना, अपने आसपास आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे ऐसी जो लिविंग भी होंगी एंड जो नॉन लिविंग भी होंगी. Yes beta, when you will look around yourself, then you will find a large number of living and non-living things. Living things are those things that can breathe, like human beings, animals, plants, है ना. So these all comes under the living things, and non-living that they cannot breathe and they cannot move, like table, chair, fan. These all comes under the non-living things. So for example, plants, animals, books, water and so on, all these things that we see or feel are matter. कहते जो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, ये क्या है? these all are matter. Why these all are matter? Because these all things have weight and occupies space. Okay, like animals, plants, these have weight and these also occupies space, like table, chair, fan, blackboard, duster, you can say your cloths, curtains, है ना. your so many things are there that occupies space and have some weight. So these all things comes under the matter. Now what is the definition of matter beta? Anything that occupies space and has mass is known as matter. Okay, now कहते जो एयर है, एयर इज ऑल्सो अ मैटर. हाउ एयर इज ऑल्सो अ मैटर? इन द लास्ट चैप्टर वी हैव रेड ना दैट एयर हैज़ वेट एंड एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. हमने ये प्रूव किया था ना, वन एक्टिविटी वी डिड इन द क्लास, दैट एयर हैज़ वेट. व्हेन वी विल टाई two balloons at the two ends of a long stick, then the end with the inflated balloon, that will be lower, so it shows that air has weight and air also occupies space. So we can say that air is also a matter. Air is also a matter. Okay, now next is beta, all matter is made up of small tiny particles which are similar to each other. कहते जितने भी matter है, like table, chair, fan, air, water, anything, okay, these all are made up of small tiny particles that are called, these particles are called molecules. These particles are called molecules. And beta these particles are so small, इतने छोटे होते हैं ये, that we cannot see them with naked eye. हम उनको
ऐसे मतलब we cannot see them, with naked eye, but we have, if we want to see them, then we have to use a microscope, then only we can see them. Okay, now next is the spaces present between the molecules, these are called the intermolecular spaces. Okay, I have already shown you in the Zoom classes ना, मैंने आज आपको करवाया था Zoom classes में with the help of you can say by drawing the molecules on a page, है ना. I have shown you that these are the molecules, and the empty spaces that are present between these molecules, these are called the intermolecular spaces. Now next is beta, come on the next page. Next is states of matter. States of matter, this also we have already done in our online class, in our Zoom class, that there are 3 states of matter beta. There are 3 states of matter: solid, liquids and gases. आप जब आप अपने आसपास देखते हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखती हैं, लाइक टेबल, चेयर, फ़ैन, यही चीज़ें दिखती है ना, कर्टन्स, विंडोज़, वाटर, एयर. तो ये क्या है बेटा, इनकी कुछ इनकी स्टेट्स है ना, लाइक टेबल, चेयर, फ़ैन, ये किसके कौन सी स्टेट में आता है? दीज ऑल कम्स अंडर द स्टेट ऑफ सॉलिड, है ना. लाइक वाटर, मिल्क, जूस, दीज ऑल कम्स अंडर द स्टेट ऑफ लिक्विड्स, है ना. और एयर जो है हमारी, it comes under the gaseous state. So हमेशा always you will find the 3 states of matter. Okay, solid, liquids and gases. So now we will read about these 3 states of matter one by one. First of all solids beta. First of all solids. So solids जो है, solids are substances that have a fixed shape, size and volume. सॉलिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी एक फिक्स शेप होती है, साइज़ होता है एंड फिक्स वॉल्यूम होता है. ठीक है, लाइक फिक्स शेप कैसे, दैट सॉलिड्स को बेटा हम वी कैन नॉट प्रेस द सॉलिड्स बिकॉज सॉलिड्स आर सो हार्ड ना, वी कैन नॉट प्रेस दैम एंड वी कैन नॉट चेंज देयर शेप. अगर हम उनको कहीं भी रखें, किसी भी यूटेंसिल में रखें, ठीक है, तो उनकी शेप तो चेंज नहीं होगी ना. इफ़ लाइक आई हैव अ पीस ऑफ वुड, मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, आई कैन नॉट प्रेस इट ना. You can take a piece of wood in your hands, then try to squeeze it, try to press it, then you are not able to press that because it is very hard. So the substances that have fixed shape, size and volume, they are called solids, and the molecules in the solids are very tightly packed and have very little intermolecular spaces between them. Today we did in Zoom class ना, मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था that how molecules are packed in the solids and there are very little space between them. बहुत ही कम इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट होती है सॉलिड्स में. दैट्स वाई सॉलिड्स आर वेरी हार्ड इन नेचर. दैट्स वाई ड्यू टू दिस मॉलिकुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट्स वाई द सॉलिड्स आर वेरी हार्ड. ओके, एंड दे कैन नॉट फ्लो. अगर मान लो मेरा डस्टर नीचे गिर गया या मेरा लकड़ी का पीस नीचे गिर गया, है ना, और अगर मेरा पेन नीचे गिर गया, देन कैन दे फ्लो? ऐसा हो सकता है कि मैं रूम के कॉर्नर पे आई एम स्टैंडिंग, तो अगर मेरा पेन नीचे गिर गया तो वो फ्लो करके दूसरे कॉर्नर तक चला जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. सो सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो बेटा, सॉलिड्स जो हैं वो फ्लो नहीं कर सकते. ओके, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड इन सॉलिड्स. ओके, नाउ व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स? लाइक table, chair, fan, cloths, furniture, buildings, these all comes under the examples of solids. Okay, now next is the shape and size of solid can be changed. कहते हैं हम shape and size को change कर सकते हैं solid की, but only there is one condition, if we will break them. अगर हम उनको तोड़ देंगे, ठीक है, if I will break the pen from the center, then obviously its shape and size will change, है ना. अदरवाइज वी कैन नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज़. अगर हम उनको नहीं ब्रेक करेंगे तो हम कभी भी उनकी शेप और साइज़ को चेंज नहीं कर सकते. ओके, नाउ नेक्स्ट इज बेटा लिक्विड्स. नेक्स्ट इज लिक्विड्स. सो नाउ
लिक्विड्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट अ फिक्स्ड शेप। या तो लिक्विड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। क्यों फिक्स्ड शेप नहीं होती बेटा उनकी? लाइक आई हैव अ वाटर इन ग्लास, ठीक है। अगर मैंने वाटर को गिलास में डाला तो उसने गिलास की शेप ले ली। अगर मैं उसी वाटर को बाउल में डाल दूँ, कटोरी में डाल दूँ, तो वो कटोरी की शेप ले लेगा, वाटर है ना, या फिर मिल्क या फिर जूस, कोई भी चीज़ जो लिक्विड है। ओके अगर मैं उसी वाटर को या फिर जूस को जग में डाल दूँ देन इट विल टेक द शेप ऑफ द जग, है ना। ऐसे जो लिक्विड्स होते हैं बेटा दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने आपको बताया था दैट वॉल्यूम क्या होता है बेटा? द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज, कि एक ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो लिक्विड्स जो होते हैं बेटा दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। जिस भी हम कंटेनर में डालते हैं लिक्विड्स को वो उसी की शेप ले लेते हैं। ओके नाउ द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स आर लूजली पैक्ड एंड हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बिटवीन दैम देन द सॉलिड्स। कहते जो इनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं ये थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड्स। सॉलिड्स में तो बिल्कुल ही क्या थे? दे वर द टाइटली पैक्ड, लाइक यू कैन सी इन दिस डायग्राम दे आर टोटली टाइटली पैक्ड बेटा, लाइक दिस, है ना। दे आर टाइटली पैक्ड, बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए हैं। बट इन लिक्विड्स में क्या है बेटा? दे आर लूजली पैक्ड एंड देयर आर मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस कम थी, लिक्विड्स में क्या है? सॉलिड्स से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। सो दिस लूज पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसी लूज पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण जो लिक्विड्स होते हैं दे कैन मूव अराउंड, दे कैन फ्लो। अगर मान लो हमारा दूध गिर जाए नीचे या फिर हमारा जूस गिर जाए नीचे या फिर पानी गिर जाए हमसे, है ना, तो क्या होता है? वो थोड़ा डिस्टेंस क्या होता है? वो फ्लो करता है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, होता है ना कि थोड़ा सा डिस्टेंस वो फ्लो करके जाता है ना। सो दैट्स वाई लिक्विड्स कैन फ्लो ड्यू टू द लूज पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड्स बेटा? Like examples of liquids are very easy: water, milk, juice, these all are the examples of liquids. Okay, so today we will read up to liquids only. Tomorrow you can say in next video we will start with gases. Okay everyone, so please read these 2 pages at home and till then bye bye everyone.